کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں بہتری۔ مرغی کا گوشت 15 روپے سستا ہو گیا، فی کلو قیمت 489 روپے ہو گئی ہے۔ فارمی انڈے 269 روپے کی سطح پر برقرار ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ موجود ہیں عبدالقادر۔ کیا تفصیلات ہیں؟ قیمتوں میں کمی کی گئی اور اس کمی کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ برائلر کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر اضافے کی وجہ سے جو شہریوں کی قوت خرید تھی وہ کم ہو چکی تھی، جس کے بعد کھپت جو ہے وہ کم ہو چکی تھی، اور اس کے بعد اب جو ہے سپلائی قدرے بہتر ہوئی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں برائلر کی سیلز متاثر ہونے کی وجہ سے برائلر فارمرز کی جانب سے برائلر کی سپلائی کو قدرے بہتر کیا گیا، جس کی وجہ سے آج 15 روپے فی کلو تک برائلر کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ مرغی کا گوشت 504 روپے فی کلو سے کم کر کے 589 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ اسی طرح زندہ برائلر کے دام 10 روپے فی کلو تک سستے کیے گئے۔ ہول سیل زندہ برائلر 318، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 326 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آج بھی مستحکم رکھی گئی ہیں، 269 روپے فی درجن کی سطح پر آج برقرار ہیں۔ انڈوں کی پیٹی 7,950 روپے کی کر دی گئی، جبکہ مارکیٹ میں فی انڈا جو ہے 22 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو شہری ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ برائلر کی قیمتوں میں کمی جو ہے وہ اس تیزی سے نہیں کی جا رہی جس تیزی سے اس میں اضافہ کیا گیا تھا، کیونکہ جو برائلر کی قیمتیں 450 روپے فی کلو تک پہنچ چکی تھی رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں، تو اس کے بعد قیمتوں میں 30، 25 اور جو ہے وہ 40 روپے تک کا بھی اضافہ کیا گیا، لیکن اب جب قیمتوں میں کمی کی جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے تو وہ 10 سے 15 روپے فی کلو تک کیا گیا۔ اس حوالے سے انتظامیہ جو ہے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے صرف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بنیاد پر سرکاری نظرناموں کا اجرا نہ کرے، بلکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات بھی کرے، تاکہ مارکیٹ میں برائلر کی قیمتیں مزید کم ہو سکیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر اس تفصیل کا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، چھوٹی عید پر عوام کو بڑا جھٹکا، 8 روپے کی تجویز۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول 10 روپے مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 282 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ہائی سپیڈ اور لائٹ ڈیزل کی قیمتیں بغیر کسی رد و بدل کے برقرار ہیں۔ مٹی کے تیل کی قیمت 5 روپے 98 پیسے بڑھا دی گئی ہے۔ عید سے قبل عوام کی خوشیوں کا دھڑن تختہ، مہنگائی کے بھنور میں پھنسے عوام کو مہنگائی کے ایک اور دریا کا سامنا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 10 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا، قیمت 272 سے 282 روپے لیٹر تک پہنچ گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت 5 روپے 98 پیسے بڑھا دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتیں بغیر کسی رد و بدل کے برقرار۔ ریلیف کی امید لگائے غریب عوام حکومت کا منہ دیکھتے ہی رہ گئی۔ عوام نے پیٹرول کی قیمت میں اضافے کو عید کا تحفہ قرار دیا۔ گھر کا راشن پورا کریں یا بچوں کے عید کے کپڑے لیں یا پیٹرول ڈلوائیں۔ اسٹوڈنٹ بندے ہیں، کہاں جائے؟ پیٹرول بھی مہنگا کر دی 10 روپے۔ پہلے ہمارے پاس پیسے پہلے نہیں دیتے اسٹوڈنٹ بندے کے پاس۔ اسٹوڈنٹ بندہ کہاں سے پیسے کمائے گا؟ پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا، سارے خرچے نہیں پورے ہو رہے، سواری نہ ساری لڑائی ہے۔ ٹھیک ہے، مہربانی ہے اپیل ہے حکومت کو پیٹرول سستا کیتا جائے۔ جو آدمی برسے روزگار نہیں ہے، مزدور ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ ان کو تو روٹی نہیں ملتی، پیٹرول تو ہمارے لیے عذاب بن گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے گزشتہ رات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا۔ ماہ سیام میں سفید پوش طبقہ ریلیف سے محروم، مفت آٹے کی اہلیت پر پورا نہ اترنے والے شہری مہنگا آٹا خریدنے لگے ہیں۔ مارکیٹ میں چکی کا آٹا 170 روپے فی کلو تک بکنے لگا ہے، جبکہ فائن آٹا 160، کھلا آٹا 150 روپے کلو تک دستیاب ہے۔ بڑھتی قیمتوں کے باعث 10 کلو آٹا خریدنے والے شہری 3 کلو آٹا لینے لگے ہیں۔ مارکیٹ میں آٹے کی قیمت کا مسئلہ جوں کا توں، متوسط طبقے کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے۔ اوپن مارکیٹ میں آٹے کی منمانی قیمت، عوام مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ عام کھلا آٹا کم از کم 150 روپے فی کلو مل رہا ہے۔ سفید فائن آٹا 160 روپے فی کلو ہے۔ چکی کا آٹا 170 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 2150 سے 2200 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1158 روپے میں بکنے لگا۔ عوام کہتے ہیں مارکیٹ میں منمانی قیمت پر فروخت ہونے والا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ مفت آٹے سے سب سے پہلے تو آپ کو میسج کرنا پڑے گا آپ نااہل ہے کہ اہل ہے، اس کے بعد وہ آپ وہاں جائیں گے، وہاں پر رش ہوگا، اتنا رش ہوتا ہے کہ انسان وہاں پر صبح جائے تو شام کو آٹا وہ بھی ملنا ناممکن ہے۔ اب میں نے 5 کلو آٹا لیا 800 روپے کا، ٹھیک ہے نا، حساب لگا لے گا 1 من آٹے کی قیمت کہاں چلے جاتی ہے۔ اب یہ 3 دن کا آٹا ہے 800 روپے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق گندم مہنگی ہونے کی وجہ سے اوپن مارکیٹ میں تیزی ہے اور مزید تیزی کا خدشہ بھی موجود ہے۔ وزیر اعظم چینی کی اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری پر سخت برہم۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کی منظوری دے دی گئی۔ شہباز شریف کہتے ہیں عوام کو ستانے والوں سے حساب لیں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। नाजायज़ मुनाफाखोरी और चीनी की स्मगलिंग की इतलात पर सख्त बरहमी का इजहार। चीनी की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। स्मगलिंग के तदारुक के लिए पीर को इस्लामाबाद में आला सतह का इजलास भी तलब कर लिया। इजलास में चीनी समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क गिर कार्रवाई की हिकमत अमली तैयार होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलव्विस किरदारों से आहनी हाथों से निमटने और सख्त सजा देने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम को स्मगलरों और नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को चीनी मिल मालकान से मुलाकात और कीमत कंट्रोल करने की हिदायत कर दी। इजलास में वज़ीर आला मोहसिन नकवी, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी आहद चीमा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी खुराक, IG पंजाब और दीगर हुक्काम शरीक हुए। महंगाई ने शहरियों को चारों तरफ से घेर रखा है। एक हफ्ते में 26 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने महंगाई की सूरत हाल पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। हर सू जिस एक आवाज की गूंज है वो है महंगाई। हर रोज महंगाई का ग्राफ लम्हा बलम्हा बदल कर ऊंचाई की जानिब है। हफ्तावार महंगाई की क्या सूरत हाल है, इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की मजमूई शरह 40.61% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 26 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 9 अशिया की कीमतों में कमी और 16 की कीमतों में इस्तेकाम रहा। एक हफ्ते में LPG का घरेलू सिलेंडर 141 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ। एक दर्जन अंडे 6 रुपए 89 पैसे महंगे हुए। एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 8 रुपए 29 पैसे इजाफा हुआ। बीफ की कीमत में 5 रुपए 74 पैसे जबकि मटन की कीमत में 9 रुपए 95 पैसे इजाफा हुआ। एक हफ्ते में फी दर्जन केले 4 रुपए महंगे हुए। दाल माश की कीमत में 6 रुपए 12 पैसे इजाफा। एक हफ्ते में टमाटर की कीमत में 17 रुपए 14 पैसे कमी वाक़ई हुई। प्याज की कीमत में 15 रुपए 37 पैसे और लहसुन की कीमत में फी किलो 4 रुपए 95 पैसे कमी आई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 74 रुपए 7 पैसे कमी आई। अवाम कहते हैं जिस कदर महंगाई हो रही है इस तनासुब से चंद अशिया की कीमतों में मामूली कमी बेमानी है। हुकूमत और इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करे। सूरज का पारा हाई हुआ तो एयर कूलर्स की कीमतों को भी आग लग गई। दर्जा हरारत बढ़ते ही एयर कूलर्स की कीमतों में 35 से 40% तक इजाफा हो गया। बढ़ती हुई कीमतों से दुकानदार और ख़रीदार दोनों ही परेशान हैं। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए एयर कूलर बड़ी सहूलत गर्दानी जाती है, मगर महंगाई के तड़के ने आम आदमी से ये सहूलत भी छीन ली है। दर्जा हरारत बढ़ते ही एयर कूलर्स की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतों में 35 से 40% तक इजाफा हो गया। बड़े साइज का रूम एयर कूलर 17 से 20 हजार रुपए में मिल रहा है। दरमियाने साइज का एयर कूलर 13 से 15 हजार रुपए तक है। छोटे साइज का एयर कूलर 9 से 12 हजार रुपए में दस्तयाब है। खरीदार कहते हैं कि मौजूदा हालात में एयर कूलर खरीदना नामुमकिन हो गया है। पिछले साल ये बरवाई थी तो मेरे ख्याल 600 में थे, अब ये लिए अब 1400 रुपये की हो गई हैं। और इसी तरह कूलर जो पिछले साल था ये आम जो सबसे छोटा ये 7 से 8 हज़ार का, अब वही पता किया वो इस टाइम 10 हज़ार का कूलर हो गया आम से आम। दुकानदार मटेरियल महंगा होने से परेशान हैं। उनका कहना है कि कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। लोग पुराने कूलर्स की मुरम्मत को तरजीह दे रहे हैं। इस साल और पिछले साल में तकरीबन 2-2 हज़ार रुपया 3-3 हज़ार रुपया कूलर पर बढ़ गया है, क्योंकि लोहा भी महंगा हो गया है, पंखा भी महंगा हो गया है, जिसकी वजह से लोग नया कूलर नहीं खरीद रहे और पुराने कूलर को रिपेयरिंग कराने की कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होगा, जिसके बायस एयर कूलर की डिमांड बढ़ने पर कीमतों में तेजी का भी इम्कान है। आपको हम खबर से आगाह करें कि सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। जमात इस्लामी की ईद के बाद 1 पॉइंट एजेंडे पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी की क़यादत में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान और शहबाज शरीफ को बुलाने के लिए राबिते शुरू कर दिए गए हैं। हुकूमत और अपोजिशन में सियासी तनाव कम करने की कोशिशें। जमात इस्लामी मफाहमती महाज पर मुतहर्रिक हो गई। ईद उल फित्र के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी की क़यादत में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इमरान खान और शहबाज शरीफ को बुलाने के लिए राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। सिराजुल हक की शहबाज शरीफ और इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें भी हो चुकी हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का 1 पॉइंट एजेंडा आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय होगा। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी हुकूमत को अक्टूबर से कबल जबकि तहरीक इंसाफ को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब की तरक्की का जो सफ़र हमने शुरू किया था, जिसे साबिक हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर रोका, पंजाब के अवाम से मुस्लिम लीग नून की हिमायत का इंतकाम लिया गया। 4 साल पंजाब को एक नाअहल और कठपुतली वज़ीर आला के सुपुर्द किया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में जारी तरक्याती कामों और मुजव्वज़ा मनसूबों के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। मुशीर वज़ीर आज़म अहद खान चीमा, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी और सूबाई अफसरान इजलास में शरीक हुए। इजलास में इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लाहौर में नए मनसूबे तो दरकिनार, हमारे शुरू किए गए मनसूबों को भी तातुल का शिकार रखा गया। ये मंसूबे अब तक मुकम्मल होकर लोगों की मुश्किलात में कमी कर चुके होते। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इन तमाम जारी मंसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। इजलास में गुजरांवाला के अवाम की सहूलत के लिए लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड के मुजव्वज़ा मंसूबे के हवाले से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। कमेटी आइंदा इजलास में इस मंसूबे बारे तफसीली ब्रीफिंग पेश करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के माबैन मुज़ाकरात का मामला, चेयरमैन PTI इमरान खान की हिदायत पर 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। परवेज़ खटक, सेनेटर एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद कमेटी में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ की 3 रुकनी कमेटी मुल्क में जारी सियासी बहरान के हवाले से जमात इस्लामी पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेगी। जमात इस्लामी की आला सतह वफ़द ने सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें की थीं और कुछ तजावीज़ पेश की थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा लाहौर, ईद की छुट्टियों में लाहौर ब्रिज साइट पर काम करने वालों के लिए बड़ा ऐलान, मज़दूरों को 3 गुना उजरत अदा करने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि सारी मशीनरी लगाएं, मनसूबा 2 हफ्तों में मुकम्मल करके दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में जारी तरक्याती मनसूबों का दौरा, ज़ेर तामीर लाहौर ब्रिज साइट का दौरा किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम भी हमरा थे। चीफ इंजीनियर LTA इसरार सईद ने जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की CVD मनसूबे पर 3rd पार्टी तब्दील करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि NLC बहुत अच्छा काम करने वाला अदारा है। वॉल्टन रोड को 2 माह में मुकम्मल किया जाए। मजदूरों को ईद की 4 दिन की छुट्टियों के 3 गुना पैसे दिए जाएँ। आप 3rd पार्टी इनकी कॉस्ट पे आप अपॉइंट करें। NLC बहुत अच्छा काम करने वाली ये कॉन्ट्रैक्टर जो इज़ वेरी गुड। उनको 2-2, 3 दिन गुना 5 दिन की तनख्वाह दे दें उनको, वो खुशी से काम करेंगे। भाई मेट्रो का जो फार्मूला वो इस्तेमाल करें। ओवरहेड ब्रिज की लंबाई 540 मीटर और चौड़ाई 11.1 मीटर है। आगे बढ़े और बात करें कि चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि आलमी मंडी में तेल सस्ता लेकिन पाकिस्तान में महंगा है। पहले ही कहा था इसहाक डार नाअहल वज़ीर ख़जाना है। फजल रहमान को अदलिया के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। मरकज़ी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक रुकने कौमी असम्बली राना मोहम्मद नज़ीर, साबिक MPA सोनिया शाह और अली शाह समेत दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही का इस मौका पर कहना था पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा जुल्म है। इसहाक डार IMF के आगे लेट गए मगर फिर भी वो एतबार करने को तैयार नहीं। फजल रहमान की अदलिया के खिलाफ सड़कों पर निकलने की धमकी काबिल अफसोस है। अवाम और इदारे मिलकर ही कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। मुंतखब हुकूमत ही कच्चे और पक्के के डाकुओं का कला कमा कर सकती है। PP 169 से नून लीगी रहनुमा अली जैदी की जानिब से लीगी कारकुनों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का अहतमाम। सरदार अयाज सादिक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इलामा इकबाल रोड पर मकामी मार्की में होने वाले इफ्तार डिनर में लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई थी। हल्के से मुस्लिम लीग नून के तमाम अहदेदारों ने भी शिरकत की। सरदार अयाज सादिक ने हल्का के तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात की और हल्का के मसाइल समेत दीगर सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दूसरी जानिब शाहदरा टाउन के अब्दुल रज़्ज़ाक स्टेडियम में साबिक़ गवर्नर पंजाब और मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइज़र चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज़ में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। कहते हैं 1 किलो आटे के लिए 1 किलोमीटर की लाइनों में लगना पड़ रहा है। साबिक़ हुकूमत ने तरक्याती कामों के बजाय फंड्स दिखाए। शाहदरा टाउन के अब्दुल रज़्ज़ाक स्टेडियम में इफ्तार डिनर। साबिक़ गवर्नर पंजाब और मुस्लिम लीग कॉफ के चीफ ऑर्गेनाइज़र चौधरी मोहम्मद सरवर की खुसूसी शिरकत। उनका कहना था कि शाहदरा का इलाका पानी, गैस, सड़कों और पक्की गलियों जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 1 किलो आटे के लिए 1 किलोमीटर की लाइनों में लगना पड़ रहा है। साबिक़ हुकूमत ने तरक्याती कामों की बजाय फंड्स खाए। 1 बोरी आटा के लिए 1 किलोमीटर आपको इंतजार करना पड़ता है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ जो हैं क्यू में खड़ी होती हैं। तो इन हालात में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सब मिलकर एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने देखा था।
चौधरी मोहम्मद सरवर का मजीद कहना था कि शादरा में बेहतरीन स्कूल और हस्पताल बनाएंगे, तमाम वसाइल बरूएकार लाकर अवाम को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। जो खालिद महमूद का मिशन था शादरा में, वो मिशन हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। और वो मिशन था गुर्बत को ख़त्म करने का, वो मिशन था लोगों को इंसाफ देने का, वो मिशन था बेहतरीन हस्पताल बनाने का, बेहतरीन स्कूल बनाने का। तो इंशाअल्लाह शादरा को हम तरक्की देंगे। इफ्तार डिनर में शुरका ने मुस्लिम लीग कौफ के हक में नारेबाजी की और नोट भी निछावर किए। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़। अल खिदमत फाउंडेशन और निजी यूनिवर्सिटी की जानिब से यतीम बच्चों के लिए ईद मेला, बच्चों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, तहाइफ भी तकसीम किए गए। सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहीम हसन मुराद कहते हैं यतीम बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। अल खिदमत फाउंडेशन यतीम बच्चों की खुशियों में शरीक। अल खिदमत फाउंडेशन और निजी यूनिवर्सिटी की जानिब से यतीम बच्चों के लिए ईद मेला, सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहीम हसन मुराद ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। इफ्तार डिनर के बाद यतीम बच्चों में ईद गिफ्ट्स तकसीम किए गए। सूबाई वज़ीर बल्दियात का कहना था कि अल खिदमत फाउंडेशन के साथ मिलकर यतीम बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। जिस तरह अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि नेकी के कामों में एक दूसरे के मददगार साबित हो, एक दूसरे की मदद करो। तो जब भी हमें एज एन इंस्टीट्यूशन कभी मौका मिलता है कि कोई भी खिदमत फाउंडेशन की मदद कर सके, तो हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ जो है वो इनकी इमदाद कर सकें। सेक्रेटरी अल खिदमत फाउंडेशन सैयद वकास जाफरी का कहना था कि निजी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर 3 साल से काम कर रहे हैं। यतीम बच्चों को ये एहसास दिला रहे हैं कि इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं। आप यानी आपके बहुत सारे अंकल्स हैं, आंटियां हैं, आपके भाई और बहन हैं। तो हम जो है कि हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको ये मौका फराहम करें कि वो इन खुशियों में अपने आप को अकेला ना महसूस करें। ईद गिफ्ट मिलने पर बच्चे भी खुश दिखाई दिए। हमें इधर आके बहुत अच्छा लगा, इनके साथ हम सब ने अफ्तारी की और इधर झूले लगे, बहुत मज़ा आया। हमें ईदी भी दी इन्होंने। आज हम इधर आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा और इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। हमें भी चाहिए कि इस तरह हर बड़ी करते रहते हैं। पिछली दफ़ा ये बेहतर है। तकरीब में सदर अल खिदमत फाउंडेशन प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान और निजी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने शिरकत की। कैमरामैन अरसलान असलम के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज़ काशिफ ने एक और चोटी पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया है। शहरोज़ काशिफ ने नेपाल में मौजूद दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी अन्नपूर्णा सर कर ली। शहरोज़ काशिफ 11 चोटियाँ सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपैमा बन गए। पाकिस्तानी खातून कोहपैमा नायला कयानी ने अन्नपूर्णा चोटी पर परचम लहरा दिया। नायला कयानी चोटी अन्नपूर्णा सर करने वाली पाकिस्तानी पहली खातून बन गई हैं। इसी पर बात करेंगे बिलाल अकील से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज़ काशिफ और खातून नायला कियानी का मुल्क के लिए बड़ा एजाज़ है। शहरोज़ काशिफ और नायला कियानी ने नेपाल में मौजूद दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी अन्नपूर्णा सर कर ली और पाकिस्तानी परचम लहराया है। शहरोज़ काशिफ 8000 मीटर से ज़ायद दुनिया की 11 चोटियां सर कर चुके हैं और दुनिया की बुलंद तरीन 14 चोटियों में से 11 चोटियां सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपैमा बन गए हैं। 2 रोज कबल अली सतपारा के बेटे साजिद अली सतपारा ने भी अन्नपूर्णा पर पाकिस्तानी परचम लहराया था। पाकिस्तानी फीमेल कोहपैमा नायला कियानी ने भी शहरोज़ काशिफ के हमरा अन्नपूर्णा पर पाकिस्तानी परचम लहराया है, जबकि नायला कियानी चोटी अन्नपूर्णा सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपैमा बन गई हैं। शहरोज़ काशिफ के वालिदैन का इस हवाले से कहना है कि शहरोज़ काशिफ दुनिया की बुलंद तरीन 14 चोटियां सर करना चाहते हैं, जिसमें से 11 उन्होंने सर कर ली हैं। ये सब उनकी मेहनत और लगन का नतीजा है और हमारी दुआ है कि वो इसी तरह मेहनत जारी रखें और ये जो मिशन है अपना 14 चोटियां सर करने का, इसको पूरा करें। बहुत शुक्रिया बिलाल अकील इस तफसील का। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज़ काशिफ ने एक और चोटी पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया है। शहरोज़ काशिफ ने नेपाल में मौजूद दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी अन्नपूर्णा सर कर ली है। अब आपको बताएं कि हुकूमती इक़दामात किसी न आए आवाम के काम। सरकारी रेट लिस्ट में 2 सब्ज़ियाँ मज़ीद महंगी कर दी गई हैं, जबकि मार्केट में सब्ज़ियाँ सरकारी निर्खों के बरक्स महंगी हैं। अदरक 750, लहसुन चाइना 450, प्याज 90 और टमाटर 70 रुपये किलो तक फ़रोख्त होने लगा। मार्केट में फल भी सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त हैं। सेब 450 रुपये किलो, केला 400 रुपये दर्जन में दस्तयाब हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमती इक़दामात के बावजूद जो है वो सरकारी रेट लिस्ट में 2 सब्ज़ियाँ मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। मार्केट में सब्ज़ियाँ सरकारी निर्खों के बरक्स जो हैं वो महंगी फ़रोख्त की जा रही हैं।
सब्जियों की बात की जाए तो अदरक 750, लहसुन चाइना 450, प्याज 90 और टमाटर 70 रुपये किलो तक फ़रोख्त होने लगे। मार्केट में फल भी सरकारी नरखों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है, जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा कि सरकारी नरखनामों के बरक्स जो है वो कीमतें बताई जा रही हैं। आज बिल्कुल जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए आज सवेरे, लेकिन इन पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा है। इन नरखनामों पे जो इंतजामिया की जानिब से जारी किए जाते हैं, इसका मकसद यही है कि शहरियों को सारा दिन सब्जियां और फल इन्हीं नरखनामों के मुताबिक दस्तयाब हों, लेकिन शहर की सब्जी मंडियों और फ्रूट मंडियों में भी इन पर अमल दरामद नहीं होता, जिसके बायस शहर के परचून बाजारों तक जो है ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है, जो कि शहरियों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि सरकार की जानिब से जो सरकारी लिस्ट जारी की जाती है उसमें कीमतों में इजाफा किया जाता है, लेकिन उसके बाद दुकानदार जो है वो मनमर्जी की कीमतें भी वसूल कर रहा है। आज जो सब्जियों की सरकारी लिस्ट जारी की गई उसमें 5 रुपए इजाफे के साथ प्याज की कीमत 65 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज जो है 65 की बरस 90 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 50 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में टमाटर 70 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लीमू की कीमतों में मुसलसल इजाफा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लीमू पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन लीमू की कीमत भी अब शहरियों के लिए आज जो है वो बढ़ने लगी है। आज 10 रुपये इजाफे के बाद लीमू देसी 430 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही देसी लीमू जो है 520 से 540 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि लीमू चाइना जो है उसकी कीमत शहरियों से 250 रुपये फी किलो तक वसूल की जा रही है। मौसमी सब्जियों में आलू जो है वो 60 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 80 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। इसी तरह मेथी जो है उसकी कीमत 110 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 130 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अच्छा अब्दुल कादिर, ये बताइएगा कि इंतजामिया की नाकामी की क्या वजह, इस पर आप कहेंगे? जी बिल्कुल, इंतजामिया जो है वो मार्केट में जो है वो ग्राम फरोशों को जो है वो चेक नहीं करती, और साथ ही साथ जो तक सब मर्सियों में और होलसेल मार्केटों में जो कीमतें हैं उन पर कंट्रोल नहीं होगा, शहर की परचून मार्केटों में नहीं होगा, क्योंकि परचून दुकानदारों की जानिब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जाता है कि जो सरकारी रेलिस्टें जारी की गई हैं, इन रेलिस्टों के मुताबिक शहर की होलसेल मार्केटों और सब्ज़ मंडियों में भी जो है वो इन दामों पर सब्जियां और फल नहीं फरोख्त हो रही, जिसकी वजह से दुकानदार जो है वो महंगी सब्जियां खरीद कर महंगी फरोख्त करता है, महंगी सब्जियां खरीद कर सस्ती नहीं फरोख्त कर सकता है। और इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केटों और जो बाजार हैं वहाँ पर ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, मुकदमात का इंदराज भी किया जाता है, भारी भरकम जुर्माने भी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो शहरी जो है वो रिलीफ से महरूम है, क्योंकि दुकानदार जो जुर्माने की रकम है वो भी इसी अशिया ज़रूरिया की ज़ायद कीमतों पर फरोख्त से ही हासिल करता है और अपना नुकसान पूरा करता है। क्योंकि एक आम शहरी जो है जब वो आलू की खरीदारी के लिए जाता है या टमाटर की खरीदारी के लिए जाता है तो सब्ज़ मंडियों की जो इंतजामिया उनकी जानिब से जो रेल लिस्ट जारी की गई है उसमें कीमतें कुछ और दर्ज होती हैं और जो दुकानदार है उसकी जानिब से कीमतें कुछ। अच्छा अब्दुल कादिर, ये भी बताइएगा कि लाहौर शहर में कोई ऐसा भी पॉइंट रहा है रमज़ान में जहाँ पर कीमतें स्टेबल रही हों? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो रमज़ान जो बाजार बनाए गए थे, जो कि मॉडल बाज़ारों को ही रमज़ान बाज़ारों में तब्दील किया गया था और वो भी सिर्फ 10 के करीब पूरे शहर में मौजूद है, वहाँ पर कीमतें की सही हद तक जो है कंट्रोल है, लेकिन कीमतें कंट्रोल होने के साथ साथ शहरियों की जानिब से दूसरा गिला ये किया जा रहा है कि इन बाज़ारों में कीमतें तो कम है, लेकिन मेयार या क्वालिटी जो है वो दर्जा अव्वल की या स्पेशल दर्जे की नहीं है, उसमें मिक्स दर्जे की सब्जियाँ और फल जो है वो फरोख्त की जा रही हैं। और इस हवाले से जो शहरी हैं वो खासा परेशान है, उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि अगर स्पेशल क्वालिटी की सब्जियाँ और फल चाहिए तो शहरियों को स्पेशल कीमतें भी अदा करना पड़ती हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर इस तफसील का। अब आपको बताएं कि राजगढ़ के इलाके मुस्लिम कॉलोनी से गैस गायब, गैस पाइपलाइनों में सीवरेज मिला पानी आने लगा है, इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। राजगढ़ का इलाका मुस्लिम कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गया। 2 माह से गैस गायब, गैस पाइप लाइनों में गटरों का पानी आने लगा। मुस्लिम कॉलोनी के रहायशियों का शदीद एहतजाज, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। मुस्लिम कॉलोनी के मकीन रमजान मुबारक में सख्त अजियत से दो चार, सहर अफ्तार के औकात में शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का कहना है कि बिल तो पूरा आता है मगर घरों में गैस नहीं आती। गैस पाइप लाइन में सीवरेज का पानी आ रहा है। मुतल्लिका महकमे को कई बार दरख्वास्तें भी जमा करवाई लेकिन सुनवाई ना हुई। हमने ठीक भी करवाए हैं, बाहर से पैसे लगा के बहुत परेशान है ना, शहरी के टाइम अफ्तारी के टाइम
तो हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, पूरा महल्लेदार परेशान है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज को उनका हल करिए तो हमारी मदद कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। 2 महीनों के गैस नहीं आ रही, गैस से इससे परेशान हो रहे हैं हम। इससे ज़्यादा बच्चे भी एक टाइम भूखे रहते हैं और ऊपर से सिलेंडर भी बाहर से बराबर के थक गए, इतनी महंगी गैस हो रही है। 2 दिन सिलेंडर चलता है सारा। मुस्लिम कॉलोनी के रिहायशी महंगे गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मकीनों ने हुकूमत से मसला फौरी हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उमैर फजल के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। म्यू हस्पताल में बेहोशी की दवा नायाब, मरीजों के इंतहाई ज़रूरी ऑपरेशन रुक गए। हस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि मरीजों के लिए आइसोफ्लोरिन दस्तयाब है, जल्द मजीद स्टॉक भी पहुँच जाएगा। मियो हस्पताल में सर्जिकल आइटम्स और अद्वियात की दोबारा किल्लत, ऑपरेशन मुअत्तल। बेहोशी की दवा आइसोफ्लोरिन खत्म, 2 रोज से अस्पताल में ऑपरेशन न हो सके। मियो अस्पताल में दिल के आर्जा में मुब्तला मरीजों के लिए स्टंट भी नहीं है। ऑपरेशन न होने से एमरजेंसी और एडमिट मरीजों के जख्म खराब होने लगे। जराये के मुताबिक एमरजेंसी के मरीजों को सर्जिकल का सामान बाहर से लिख कर मंगवाया जाने लगा। कंपनियों को वाजिबात की अदायगी न होने से अद्वियात की सप्लाई मुअत्तल है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अद्वियात की सप्लाई में मुश्किल का सामना है, जिसको जल्द हल कर लिया जाएगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बेरोज़गारी में कमी और सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए तारीखी फ़ैसला। पंजाब भर में पेट्रोल पंप्स के अरसा दराज से ज़ेर अल्तवा NOCs 1 मई तक जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुतल्लिका हुकाम को तमाम NOCs 15 रोज़ में क्लियर करने की हिदायत की है। नए पेट्रोल पंप्स लगने से नौजवानों के लिए मुलाजमत के हज़ारों मौक़े पैदा होंगे। पंजाब के तमाम अज़ला में पेट्रोल पंप्स के लिए 1264 दरख्वास्तें अरसा दराज से इल्तवा का शिकार हैं। हर पेट्रोल पंप पर औसतन 30 से 35 लोगों को रोज़गार मिलेगा। 1200 से ज़ायद पेट्रोल पंप्स को NOCs मिलने से 30,000 से ज़ायद लोग बरसरे रोज़गार होंगे। मोहसिन नकवी ने तमाम मुतल्लिका महकमों को पेट्रोल पंप्स के NOCs जल्द जारी करने और NOCs के इजरा में गैर ज़रूरी ताख़ीर ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि कानूनी तकाज़े पूरे करके पेट्रोल पंप्स के NOCs का फ़ौरन इजरा किया जाए। मोहसिन नकवी ने NOCs के इजरा में शफाफियत को यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। NOCs के इजरा में शफाफियत अपनाने से शहरियों का हुकूमत पर एतमाद बढ़ेगा। ईद उल फितर से कबल आखिरी एतवार मार्केट्स में ख़रीदारों की भरमार। ख़वातीन का कपड़े, जूते, ज्वेलरी, बैग्स और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश लग गया तो मर्द हजरात भी कुर्ता शलवार और जूते खरीदने में मसरूफ़ नजर आए। ईद शॉपिंग का मिशन। ईद उल फितर से कबल आखिरी इतवार को खरीदारों ने मुख्तलिफ बाजारों का रुख कर लिया। खवातीन की बड़ी तादाद इचरा बाजार पहुँच गई। खवातीन मलबूसात के साथ साथ मैचिंग जूते और हैंड बैग्स खरीदने में मसरूफ रहीं। खवातीन का मैचिंग चूड़ियों के लिए भी स्टॉल्स पर रश लगा रहा। लड़कियां मेहंदी खरीदने के साथ साथ हाथों पर लगवाती भी नजर आईं। खरीदारों का कहना था कि ईद उल फितर पर रंग बिरंगे कपड़े पहनना सजना संवरना अव्वलीन तरजीह है। ईद शॉपिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। मर्द हजरात की ईद की तैयारियां कुर्ता शलवार और पिशावरी चप्पल के बगैर अधूरी तस्वुर होती हैं। मर्द हजरात भी अपने लिए शलवार कमीज पसंद करते नजर आए। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़। ईद शॉपिंग के लिए लाहौरियों की बड़ी तादाद बाज़ारों में उमड़ आई है। लिबर्टी मार्केट में रंग बिरंगे कपड़ों की बहार। ख़वातीन कपड़ों के साथ साथ मैचिंग चूड़ियाँ और जूते भी खरीदने में मसरूफ़ रहीं। मर्द हजरात भी ईद की खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, ईद हो और खवातीन सबसे अलग नजर आने के लिए जद्दोजहद न करें, ये तो हो ही नहीं सकता। लिबर्टी मार्केट में खवातीन रंग बिरंगे मलबूसात खरीदने में मसरूफ रहीं। लड़कियों ने कपड़े खरीदने के बाद मैचिंग जूतों और चूड़ियों का रुख किया तो वहीं रंग बिरंगे कपड़ों के साथ मैचिंग दुपट्टे भी ढूंढती हुई नजर आईं। मर्द हजरात भी खवातीन से पीछे ना रहे। मर्द हजरात ईद के कपड़ों के साथ पिशावरी चप्पल लेने में मसरूफ रहे। छोटे बच्चे ईद के कपड़ों के साथ मैचिंग एनके ढूंढते रहे। शॉपिंग में मसरूफ खवातीन महंगाई का गिला करते हुए भी नजर आईं। अभी हर चीज़ महंगी हो रही है तो हाँ महंगाई है, बाकी कर ली है, थोड़ी बहुत कोई शॉपिंग रह गई है, बाकी ऑलमोस्ट कर ली है। हमारा त्यौहार है, हमने अपनी ये खुशियाँ तो मनानी ही है ना, बच्चों की भी वो सारा कुछ तो करना ही है ना। मैंने तो अपनी बेटी के लिए कपड़े लिए हैं, अपने लिए एक दुपट्टा चाहिए था वो लिया है, अब शूज़ रह गए हैं और बेटे के कपड़े रह गए हैं बस। लाहौरी ईद की तैयारियों के साथ खाने पीने की अशिया से भी लुत्फ अंदोज हुए। ईद से कबल आखिरी संडे भरपूर शॉपिंग में गुजारा। ईद के मलबूसात पर अगर लेस मोती जड़ दिए जाएं तो कपड़ों की उठान ही अलग होती है, लेकिन महंगाई की वजह से अब आवाम सादा मलबूसात खरीदने पर मजबूर हैं। मोती लैस और दीगर सजावटी अशिया बेचने वाले भी कहते हैं गाहक ना होने के बराबर है।
गोटा किनारी मोती लेस से जर्क बर्क मलबूसात की तैयारी। इस साल कपड़ों के सजावटी सामान की इंतहाई कम खरीदारी। महंगाई की वजह से शाह आलम मार्केट में रवायती गहमा गहमी नजर न आई। दुकानदारों का कहना है पहले खवातीन कपड़ों पर दीदा जेब कुशीदाकारी करती थीं, लेकिन इस साल ईद पर खवातीन सादा और सस्ते कपड़े खरीदने पर मजबूर हैं। हर चीज़ को फर्क पड़ा है, हमारी लेस वगैरह को भी काफ़ी फर्क पड़ा है। हमने यहाँ तो भी उसको यहाँ थोड़ा सा कमज़ोर किया है, या उसको गुदाना कम किया है, या कुछ उसको तरीक़ेकार तो किया है ना कुछ कि वो बैलेंस रहे। मेरे ख्याल से 60% से ज़्यादा फर्क हमें पड़ा है पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा। शहरियों का कहना है हर चीज के रेट डबल हो चुके हैं। जो लेस गुज़श्ता साल 150 रुपए की थी, अब वो 300 रुपए फी गज मिल रही है। महंगाई की वजह से अब फैशन करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। जो चीज़ हमें पहले मिलती थी 10 रुपए गज में, तो हम जाके बेचते थे 15 रुपए में, 17 रुपए में गज में। वो इस टाइम हमें मिल रही है 25 रुपए गज में, आगे से 30-35 रुपए गज बिक ही नहीं रही। हर आदमी परेशान है, सिर्फ खाने पीने के चक्कर में पड़ा हुआ है। कोई इस्तेमाल नहीं, कोई इसकी खुशियाँ नहीं, मुंह पे खुशी हैं पर वाजिया कोई कर नहीं रहा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इकदामात करे ताकि हर कोई ईद की खुशियाँ मना सके। रवां साल के लिए फितराने की कम अज़ कम फ़ी का शरह 300 रुपये मुकर्रर। मुस्तहिकीन को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए फितराने की रकम नमाज ईद से कबल अदा करना लाजिम है। सदका फितर के हवाले से दीगर अहकामात पर सुहेल कैसर की रिपोर्ट है। सदका फित्र माली इन्फाक है जिसका हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात से पहले उस साल दिया जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज हुआ। सदका फित्र मुस्तहिकीन को अदा किया जाता है जिसका अदा करना हर साहिब हैसियत शख्स के लिए ज़रूरी है ताकि गरीब और मस्कीन लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। सदका फित्र को रोज़ेदार की तहारत और पाकी का ज़रिया भी करार दिया जाता है जिसकी अदायगी नमाज ईद से कबल लाजिम है। साहिब निसाब का होना ज़रूरी है और साहिब निसाब का माना यह है कि उसके पास पाकिस्तान में इस वक्त 1,03,159 रुपये से ज़ायद रकम हो। साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है, इससे कम रकम हो या इससे कम उसके पास सेविंग हो तो उसके ऊपर सदका फ़ितर अदा करना ज़रूरी नहीं है। सदका फ़ितर वही अदा करे जो कि साहिब निसाब हो। उलमा इकराम के मुताबिक तकरीबन 2 किलो आटे की मार्केट कीमत फितराने की कम अज़ कम रकम का तयन करती है। इस हिसाब से रवां साल फितराने की कम अज़ कम शरह 300 रुपये मुकर्रर की गई है, जो की कीमत के तनासुब से 450 रुपये अदा किए जा सकते हैं। इसी तरह खजूर की मार्केट कीमत के तनासुब से 1600 रुपये, किशमिश की कीमत के तनासुब से 2500 रुपये, जबकि मुनक्का की मार्केट कीमत के तनासुब से फितराने की शरह 5000 रुपये मुकर्रर की गई है। जो सदका खैरात लोग करते हैं वो सदका खैरात का उन्हें सवाब मिलेगा, लेकिन सदका फ़ितर के लिए नियत करना ज़रूरी है। वो नियत करेगा तो सदका फ़ितर अदा होगा। अगर वैसे वो सदका खैरात कर रहा है और उसकी ये नियत नहीं सदका फ़ितर की तो वो सदका फ़ितर अदा नहीं होगा। इसके लिए उसको अलहदा तौर पे बाकायदा नियत करनी पड़ेगी कि ये सदका फ़ितर मैं अदा कर रहा हूँ। मुख्तलिफ शहरों में अजनास की मुख्तलिफ कीमतों के तनाजुर में सदका फ़ितर की रकम में मामूली कमी बेशी भी मुमकिन होती है। अमूमी तौर पर उलमा इकराम की तरफ से इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि सदका फ़ितर की जो भी शरह निकाली जाए, अगर अल्लाह ताला ने इस्तात बख्शी हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उस शरह से ज़्यादा अदा किया जाए ताकि ये रकम लेने वाले का ज़्यादा फ़ायदा हो सके। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। ईद पर हर घर में अनवां अक़साम की डिशेस तैयार होती हैं, लेकिन मीठी ईद पर मीठी सेवइयों के बगैर अधूरी है। सेवइयाँ तैयार करने वालों को सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होती। सामया सैयद की रिपोर्ट देखते हैं। मीठी ईद मीठे के बगैर अधूरी। ईद पर मीठी सवैयों की खुशबू हर घर को महकाती है। सवैयाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री में कारीगर दिन रात ये सौगात तैयार करने में मगन हैं। फैक्ट्री से तैयारी के बाद दीगर लवाजमात के साथ सवैयाँ बनती हैं दस्तरखान की शान। सवैयों को खुश्क दूध, इलायची, पिस्ता, बादाम और साफरान के साथ बनाया जाता है। खुश्क मेवाजात और सब्ज इलायची की खुशबू से सवैयों का लुत्फ दोबाला हो जाता है। सवैयों को पकने के बाद चांदी के औराक से सजाकर पेश किया जाता है। कारीगरों का कहना है कि सवैयाँ तैयार करने के लिए तकरीबन 24 घंटे दरकार होते हैं। मोटी सवैयाँ, बारीक सवैयाँ, इनकी अलग अलग पहचान है। इनमें फाइन मैदा और सूजी वाली सवैयाँ शामिल हैं। फैन का आटा ना वो यूज़ करते हैं हम, उसके बाद होदी में खोला जाता है, उसके बाद डब्बे में डालते हैं। डब्बे में डालने के बाद इसको गूंद लेते हैं, गूंद के हम जो है मशीनों के टाप उसमें डाल देते हैं। ठीक है, उसमें डालने के बाद ये जो है बन जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। सवैयाँ बनाने वाली फैक्ट्री के मालिकान का कहना है कि ईद के दिनों में कारोबार अरूज पर होता है। पाकिस्तानी सवैयाँ बैरूने मुल्क भी पसंद की जाती हैं। मीठी ईद के ऊपर तो सवैयाँ हर घर में चलती हैं
کیونکہ اس کے بغیر تو جو عید کا تو مزہ ہی نہیں ہوتا. ہر گھر میں پکتی ہیں لیکن مہنگائی یا ڈالر اتنا بڑھ گیا ہے تو فائن کی بوری جو ہے نا وہ بھی ابھی 13,000 کی ہو گئی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کام ٹھیک ہے. عید کے موقع پر میٹھی سوئیاں اب تو روایت بن چکی ہے. میٹھی عید ہو اور سوئیوں کا ساتھ نہ ہو تو میٹھی عید بھی پھیکی لگنے لگتی ہے. اس شعبے سے وابستہ افراد بھی سارا سال عید کے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ کب عید کا پرمسرت موقع آئے اور ان کا کاروبار چمکے. کیمرہ مین نعمان اجاز کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز. ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ. شہر میں ڈینگی مچھر کی افزائش کا سلسلہ خطرناک حد تک جاری ہے. ہاٹ سپاٹس ڈینگی لاروا کی افزائش کی آماجگاہ بن گئے ہیں. رواں سال بھی ڈینگی وائرس کے مریضوں میں اضافے کا امکان ہے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زاہد منیر کا کہنا ہے کہ شہر میں رواں سال میں اب تک 820 افراد کو نوٹس جاری کیے گئے. 14 افراد کے خلاف FIR درج کروائی گئی ہیں. بارشوں کے بعد ڈینگی لاروا کی افزائش کا سلسلہ تیز ہو جاتا ہے. بروقت ڈینگی لاروا کو تلف نہ کیا گیا تو ڈینگی وائرس پھیل سکتا ہے. ڈینگی لاروا کی افزائش کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. شہر میں موجود ڈینگی ہاٹ سپاٹس پر خصوصی سرویلنس جاری ہے. اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ہیموفیلیا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد ہیموفیلیا کی بیماری اور موروثی خرابیوں سے متعلق لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں ہزاروں افراد ہیموفیلیا کے مرض میں مبتلا ہیں. یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. رگوں میں دوڑتا خون زندگی کو رواں رکھتا ہے. یہی خون اگر بہنے اور رکنے کا نام نہ لے تو باعث تشویش ہے. انسان اس کی کمی کا شکار ہو جائے تو ہیموفیلیا جیسی خطرناک بیماری آ لیتی ہے. اس دن کو منانے کا مقصد ہیموفیلیا کی بیماری اور اس سے بچاؤ سے متعلق لوگوں میں شعور اجاگر کرنا ہے اور زندگی کو محفوظ بنانا ہے. پاکستان میں ہزاروں افراد ہیموفیلیا کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. طبی ماہرین کے مطابق اس مرض میں مبتلا مریض کو چوٹ لگنے یا معمولی زخم سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے جو مسلسل جاری رہتا ہے. ہیموفیلیا جو ہے وہ خون کی ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں خون کا پیدائشی طور پہ جو ہے وہ جمنا ٹھیک نہیں ہوتا. اس میں 2 فیکٹرز جو ہیں وہ زیادہ تر افیکٹڈ ہوتے ہیں 8 اور 9 جس کو ترتیب سے ہیموفیلیا اے اور بی کہا جاتا ہے. ایسے مریضوں کی زندگی جو ہے وہ دوسروں کے خون کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتی ہے یا ان انجیکشنز پہ جو ان کے جسم میں کمی ہوتی ہے وہ لگا نہ دیے جائیں. کسی بھی چوٹ کی صورت میں کسی کٹ کی صورت میں ان کی بلیڈنگ اس وقت تک سٹاپ نہیں ہوتی جب تک ان کو انجیکشنز نہ لگ جائیں یا پلازما جس کو یا FFP بولتے ہیں یا کرایوپریسپیٹیٹس وہ ٹرانسفیوز نہ کر دیے جائیں. یہ ایک موروثی اور لا علاج مرض ہے جس میں مبتلا افراد کو ساری زندگی ضرورت کے وقت انتقال خون کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. 5 سال سے خون لگ رہا ہے. ابھی تک ہفتے بعد مہینے بعد لگ جاتا ہے. مجھے میرا کچھ پتہ نہیں ہے نا کسی ٹائم ہی لگ جاتا ہے. جس ٹائم بیماری ہے نا دونوں لگ جاتی بلڈ کو پھر چیک کراتے ہیں ہم. میں سال کی تھی جب کا مجھے بلڈ لگنے لگا ہے. پہلے مجھے 15 دنوں بعد لگتا تھا اب مہینے بعد لگ رہا ہے. ہیموفیلیا کا عالمی دن ہر سال 17 اپریل کو ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام منایا جاتا ہے. کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں سنتھیٹک ٹرف بچھانے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ نگران مشیر کھیل وہاب ریاض نے افتتاح کیا. 16 کروڑ روپے کی لاگت سے ٹرف اور اسٹیڈیم کی تعزین و آرائش کی جائے گی. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں سنتھیٹک ٹرف بچھانے کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض. وہاب ریاض نے نئی ٹرف بچھانے کا افتتاح کیا. سیکرٹری سپورٹس پنجاب شاہد زمان، DG سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل و دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وہاب ریاض کا کہنا تھا کہ ہاکی کے کھلاڑیوں کو عالمی معیار کے مطابق سہولیات فراہم کر رہے ہیں. FIH کی منظوری کے بعد ہاکی کا انٹرنیشنل ایونٹ کرایا جائے گا. انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن جو ہے اس کے ساتھ ہماری جو ہے وہ کولیبریشن ہوگی کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر یہاں پہ جو ہے ہم لوگ ٹورنامنٹ کوئی بھی انٹرنیشنل گیمز نہیں کروا سکتے. تو آگے فردر یہ ہے کہ ونس ہماری ان کے ساتھ ایفیلیشن ہو جائے تو اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ انشاءاللہ انٹرنیشنل ٹیمز کو بھی دعوت دیں گے اور اپنی ہاکی کو جو ہے وہ اوپر لے کے جائیں گے. تقریب میں مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض، سیکرٹری سپورٹس پنجاب شاہد زمان اور DG سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل کو سوینئر پیش کیے گئے. کیمرامین نعمان اجاز کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر میٹرو بس سروس کی توسیع کا اعلان کر دیا ہے. ماضی میں بھی میس ٹرانزٹ سسٹم کے توسیع کے اعلان زبانی جمع خرچ ثابت ہوئے. حکومت کے میس ٹرانزٹ سسٹم کی توسیع سے متعلق کیے گئے کسی بھی اعلان پر عمل نہ ہو سکا.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर मेट्रो बस सर्विस की तोसी का ऐलान। मासी में भी मैस ट्रांसिट सिस्टम की तोसी के ऐलान जुबानी जमा खर्च साबित हुए। मासी में मेट्रो बस की तोसी के लिए ऐलान अभी तक अमल दरामद के मुंतजिर हैं। साबिक और मौजूदा हुकूमत ने मेट्रो बस सर्विस की तोसी का ऐलान किया था। मेट्रो बस को राना टाउन शेखपुरा रोड तक तोसी दी जाना थी। पंजाब हुकूमत ने प्लान की मंजूरी देने के बाद फाइल को बंद कर दिया। मासी में हुकूमत ने स्पीडो बस की सर्विस को बढ़ाने का भी ऐलान किया। हुकूमत के ऐलान पर अमल दरामद करवाने में इदारे कशमकश का शिकार रहे। पंजाब हुकूमत ने स्पीडो बस का रूट शेखपुरा और मुरीदके तक चलाने का हुक्म दिया। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी ने दीगर शहरों में स्पीडो बस सर्विस के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रजू का फैसला किया है। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से अभी तक इसकी मंजूरी न हो सकी। जुलाई 2022 में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी मैस ट्रांसिट के पीक आवर्स में किरायों में कमी का ऐलान किया। पंजाब हुकूमत 9 माह बाद मैस ट्रांसिट के पीक आवर्स किरायों में कोई रिलीफ फराहम न कर सकी। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का मेट्रो बस फ्यूल मैनेजमेंट ठेके पर देने में उबहम पैदा हो गया है। इसकी वजह क्या है, ये रिपोर्ट देखें। लाहौर मेट्रो बस सर्विस की फ्यूल मैनेजमेंट के मंसूबे पर खतरे के बादल मंडलाने लगे। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी की जानिब से मेट्रो बस फ्यूल मैनेजमेंट ठेके पर देने में अबहम पैदा हो गया। मेट्रो बस सर्विस के मुख्तलिफ जनरेटर्स की फ्यूल सप्लाई और मॉनिटरिंग पर कॉन्ट्रैक्टर्स के तहफुजात हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स ने मैस ट्रांसिट अथॉरिटी की शराइत व ज़वाबित पर एतराज़ उठा